you know in and out. Okay, and you won't be holding in your farts anymore. You won't be concerned about shaving your armpits anymore. Seriously, you will be casual. You will be just the way you are. मेरा नाम है आशीष और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द टिप्स फॉर हैविंग दैट लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स जो हर कपल चाहता है, बट द ट्रूथ इज कुछ बहुत कम लोग कर पाते हैं ऐसा। आज के डेट में अगर बोला जाए तो कोई भी रिलेशनशिप यूजुअली लास्ट नहीं करता है, एंड दैट्स समथिंग विच not everybody wants, and because of that people are becoming very negative about it. Let's see what are the secrets, or you can say tips, for having that long lasting relationships. Now let's get straight to the point. Tip number 1: similarities doesn't work. Nowadays you must have heard about the online dating websites which people use for getting their loved ones, but you know what, people who get into relationship because of those online dating websites end up their relationship after a certain period of time. Why? Because online dating websites has an algorithm which is based on similarities, and to be honest, similarities सिर्फ स्टार्टिंग में मिलाने के लिए ठीक है, वो अपना बिजनेस के लिए कर दे रहे हैं, बट सिमिलैरिटी इज नॉट व्हाट इट टेक्स टू बिल्ड अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप. इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑफ ओनली 0.5% if you take into 100% to have that long lasting relationships. It's not that possible, it's not that easy. Okay, so similarities doesn't work. Tip number 2: argue karte ho so it's really good. Arguing is really good for your relationship because take for an example, if you have been in a relationship for a certain period of time, like 2 years, 3 years, 4 years, by that time you are completely intimate with your partner. Okay, you know in and out. Okay, and you won't be holding in your farts anymore. You won't be concerned about shaving your armpits anymore. Seriously, you will be casual. You will be just the way you are. And at that particular moment, if your partner doesn't speaks to you, doesn't complains to you like तुम्हारा यार armpits shave नहीं किया हुआ है, seriously, these are the small factors which really comes up in an issue as an arguments, which is really good for relationships. और जब ऐसा बात होता है तो आप लोगों का छोटा लड़ाई होता है, which is really good. एक रिलेशनशिप को वो बिल्डअप करता है, दैट गिव्स यू द मैग्नेट टू स्टे टुगेदर. व्हाई? बिकॉज जब लड़ाई होता है और आप लोग जब एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हो, देन यू मेक एन एफर्ट कि वापस आप उसको ठीक करो, या तो आप उसको वो आदतें बदलो, बुरी आदतें को अच्छे करो, या तो फिर आप उनसे लड़ाई करते हो तो आप फिर उनको मनाते हो. सो यू कीप ऑन मेकिंग एफर्ट फॉर ऑल दो स्मॉल फाइट्स. ओके, सो एवरी ह्यूमन हैज़ देयर ओन फ्लॉज, सो इट्स वेरी नेचुरल की प्रॉब्लम्स आएगी. सो इफ़ यू आर having arguments on it, it's really good. That keeps your relationship healthy. But if your partner doesn't speak to you anything, like उनको अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, आपकी आदतें, आपकी कुछ ऐसी आदत जो उनको पसंद नहीं आ रही है, then that's a drawback for your relationship. क्योंकि वो अपने अगर मन में रखते हैं तो, और वो ये चाहते हैं कि यार मैं नहीं बोलूँगी या मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उसको बुरा लग सकता है, यार उनको बोलना ज़रूरी है. यू नीड टू काउंटर ऑल दोज आर्ग्यूमेंट्स. यू नीड टू लेट योर पार्टनर नो एवरीथिंग. चाहे उसमें आर्ग्यूमेंट हो, जो भी हो, उनका जानना ज़रूरी है ताकि लड़ाई हो भी, सो यू गाइज मेक वे आउट ऑफ इट. फिर उसका सोल्यूशन निकाल के यू कीप ऑन मूविंग. यू नो, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आता है, यू वर्क ऑन इट, यू हैव आर्ग्यूमेंट ऑन इट, एंड देन यू जस्ट मूव ऑन. बट इफ़ यू डोंट टेल दैट, तो वो एक पाइलअप होते रहता है विथ सर्टन स्पैन ऑफ टाइम, and that is not at all good. And you know, there's a high chance कि relationship might affect, it might end up, you know. This is the reason why people are like chill out, and suddenly आप देखते हो कि your partner is like, I don't want to stay with you anymore, and you're just surprised. Yes, seriously, that happens. People are there. I have seen people personally that they are like, यार मैंने क्या ऐसा किया कि she just left me. Then it was like everything was piling up. So there are two things. अगर नहीं बोलते तो दो रीज़न होता है, या तो they are not concerned about it, they are taking the relationship for granted, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है,
या तो अगर वो आपसे प्यार करते हैं, सो दे आर सो मच कंसर्न दैट दे डोंट इवन टेल यू एनीथिंग, यू आर इन अ होल डिफरेंट वर्ल्ड, एंड इसके वजह से वो मन में रख के वो पाइलअप करके प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं. तो आर्ग्यूमेंट इज़ गुड, आप आर्ग्यूमेंट करो, आप जो भी बात है अपना मन का बाहर लाओ, उसको सॉर्ट आउट करो, फेस टुगेदर एंड मेक अ वे आउट ऑफ इट, एंड दैट विल कीप योर रिलेशनशिप बेस्ट. थर्ड पॉइंट, it's going to take a lot of effort and investment. Let's give you an example so that you can understand in a better way. Take for example love marriage and arranged marriage. Statistics के बेस पे love marriage usually नहीं सक्सेसफुल होते उतना जितना अरेंज मैरिज होता है. आई एम नॉट बीइंग पार्शल, बट अरेंज मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है. So there's a reason behind it. Don't go for that love marriage and arranged marriage thing. Okay, I want you to know the reason behind it. Okay, what's the psychology behind it? Arranged marriage में people usually have no illusions. They know कि वो arranged marriage में है, so they have to deal with a person whom they don't know at all. So they have to know them. They have to make an effort again and again to keep their relationship building. They don't know the flaws. So after knowing the flaws, उनके बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं स्टार्टिंग में, और इतना झगड़ा होता है कि you might have heard कि people says that यार शादी अच्छी नहीं है, यार ये है वो है, बहुत परेशान हो जाते हैं. वही रिलेशनशिप लास्ट करता है, वही रिलेशनशिप, बिकॉज वो लड़ाई की वजह से, वो प्रॉब्लम्स की वजह से, वो फ्लॉज को देख देख के उनके बीच में जो लड़ाई होता है, दे एंड अप हैविंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप थ्रू आउट देयर लाइफ. क्योंकि एक बार जब फ्लॉज पता चलता है तो आप उस पर डिबेट करते हो, उस पर देखते हो, आर्ग्यूमेंट्स होता है, एंड देन अगेन यू मेक अ वे आउट ऑफ इट. कमिंग टू द लव मैरिज, लेट्स टेक दैट इनटू डीप. लव मैरिज बाद में होता है, पहले लव होता है. लव से पहले पसंद आती है या पसंद आता है. अरे भाई, अगर पसंद आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अप्रोच करते हैं. वी डू ऑल द ट्रिक्स, ऑल द एफर्ट्स, ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिविटी लेवल. वी गो इन दैट लेवल ऑफ क्रिएटिविटी जहाँ पे उसको बस पसंद आ जाए. वी डू सर्टेन डिफरेंट थिंग्स, वी डू अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स. उसके बाद एक बार जब उनको हम पसंद आ जाते हैं, वी कम इन टू अ रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप के बाद क्या, 2 से 3 साल मैक्स. उसके बाद यू गाइज नो ईच अदर. सो यू आर इन अ इल्यूजन कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ है, अब मेरा रिलेशनशिप हमेशा के लिए चलेगा. नो, इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. इन्वेस्टमेंट अभी भी है, एफर्ट अभी भी करना पड़ता है. 3 साल के बाद तो और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है. सी, इट्स अ सिंपल फंडा. जितना टाइम आगे बढ़ते जाएगा उतना इन्वेस्टमेंट, उतना एफर्ट आपको कंटिन्यू रखना है, और फिर आगे टाइम बढ़ते बढ़ते चैलेंजेस भी बढ़ेगी. ओके, विच ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ पॉइंट. यू नीड टू हैव दैट ग्रिट, यू नीड टू हैव दैट रेजिलियंस. यार आप लोग सुने होंगे कि यार वो बंदा जो सक्सेस को छू रहा है, जो पढ़ाई में अच्छा कर रहा है, दे आर हैविंग दैट ग्रेट रेजिलियंस. कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ऐसा सिचुएशन हो जो डिस्ट्रैक्ट करे, तो डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स, बट दे कीप ऑन स्टडिंग, एंड व्हाट हैपन्स, दे गेट सक्सेसफुल. उनको जो चाहिए उनको मिल जाता है. वही सेम प्रोसेस इधर भी लगता है. ठीक है, यहाँ पे यू नीड टू हैव दैट ग्रेट to make your relationship successful. If you have that low grade, low resilience, और फिर certain problems आ रहा है and your attitude is like यार अब ये relationship नहीं चलेगा, वो actually में नहीं चलेगा, फिर it's about to end. But if you have that resilience, that grit कि यार problems तो आते रहेंगे and I love her and we want to stay together, so I will make a way out of it. We together will discuss the problem and we will work it out. तो ये attitude रहेगा, तब आपका relationship long lasting होगा. So you need to have that grit, and that will make a difference where you will be able to share your grandkids that how you made your love story. Relationship is not a magic. It lasts because people makes it last. So based on all this, there are 2 couples at the end of the day, happy couples and not so happy couples. And not so happy couples usually say, we fought, it was awful, and my partner was awful. And the happy couple will say, we fought, it was really awful, but we worked it out, and now we love each other like never before. So
आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ हेल्प करे। मेक श्योर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इसको फॉलो करें ताकि आपका रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग बने। एंड अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सो हेयर इज़ द रियलिटी चेक फॉर यू। गेट दिस, सी दिस, मेक श्योर यू फॉलो दिस टिप्स एंड योर रिलेशनशिप विल बी बेस्ट। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, एंड या डू मेक श्योर यू पुट द कमेंट्स डाउन बिलो so that I can know what are your opinions, and based on that I can make some other videos. Thank you so much. Stay home, stay safe. Namaste.